عمران خان پاکستان کی تقدیر ہے، پاکستان کی آئینہ ہے، پاکستان کی امید ہے، عوام کی امید ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے لوٹ ماٹ گونڈگرگی کر کے لندن وغیرہ ملکوں میں بھاگ جا، جیسا اس کا نام ہے ایسا پاکستان ہونا چاہیے۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ قابض گروپ ہے، اس نے اس عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جو پاکستان کے مالک ہیں ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہمارے سب ادارے الٹے چل رہے ہیں، ہمارے سیاستدان ہمارے ملک کے اوپر بوجھ ہے، ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ امن، انصاف اور ترقی۔ میں 70-72 سال کی عمر میں ایک نئی جذبے کے ساتھ پاکستان کی آزادی کے لیے آیا ہوں۔ میرا لیول نیچے ہے اس لیے میں زمین پر بیٹھا ہوں۔ عمران خان ہیرا ہے، اس کو ضائع کرنے سے بچائے، اس قوم کو درخواست ہے۔ لوگ کہتے ہیں 804 قیدی ہے، قیدی نہیں ہے، وہ یرغمال ہے، وہ یرغمال ہے، پاکستان کی عوام الناس یرغمال ہے۔ ایک MPA کے پاس کم از کم 5 سیکورٹی اہلکار ہیں، اس کے لیے حفاظت ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہے، میرے اس بچے کے لیے نہیں ہے۔ میں پیدل آ رہا ہوں اور کہتے ہیں کہ بیگ چیک کراؤ، میرے پاس شناختی کارڈ ہے، میں پاکستانی ہوں، میں ایک ولیج کونسل کا صدر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں۔ یہ نوجوان میرے آنکھوں کے تارے ہیں۔ میں یہ جو بکواس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی بھی آپ انٹرویو لیتے ہیں، یہ آپ خراجی تحسینوں کے قابل ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں آپ کو۔ نمبر 1 امن چاہیے، نمبر 2 انصاف چاہیے، نمبر 3 ترقی چاہیے۔ باقی مجھے کوئی خیرات میرات کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم بزرگوں، اس عمر میں آپ کہاں کیا کرتے ہیں؟ اس عمر میں آپ آئے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے ہمارا یہ کنڈیشن آپ دیکھیں، کہ ہم ادھر موجود ہیں۔ کیوں موجود ہے؟ موجود اس لیے ہے کہ اس کا نام پاکستان ہے، لیکن آپ مجھے پاکستان کا معنی، میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ اپنی جگہ، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن پاکستان کا مطلب ہے لوٹ ماٹ گونڈگرگی کر کے لندن وغیرہ ملکوں میں بھاگ جا۔ کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی کوچ نہیں ہے، اس پاکستان ہونا چاہیے، جیسا اس کا نام ہے ایسا پاکستان ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب جیل میں کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان پاکستان کی تقدیر ہے، پاکستان کی آئینہ ہے، پاکستان کی امید ہے، عوام کی امید ہے کہ نہیں ہے؟ امید ہے اس ملک کی۔ بہت سے لیڈر گزرے ہیں، البخاری بھٹو کی الفاظ میری کان میں پڑی ہے کہ وہ بھی عوام کی تعاون سے آیا تھا، عوام کی طاقت سے آیا تھا، لیکن قابض ہو گیا اور کہہ رہا تھا کہ میں کمزور ہوں لیکن میری کرسی مضبوط ہے۔ آج کل جو بیرون کرسیوں پر بیٹھے ہیں یہ کرسی کی وجہ سے مضبوط ہے، ورنہ اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ جو رجیم ہے، جو اپنے آپ کو حکومت کہتی ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ قابض گروپ ہے، اس نے اس عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جو پاکستان کے مالک ہیں ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہمارے سب ادارے الٹے چل رہے ہیں، اب مانتے نہیں مانتے، کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے، ملک کے اوپر بوجھ ہے، ہمارے سیاستدان ہمارے ملک کے اوپر بوجھ ہے، ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ ہٹ جائیں، کوئی الیکشن میں ایکشن نہ کرے۔ یہاں یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سنو، پاکستان کا مطلب کیا؟ امن، انصاف اور ترقی۔ امن۔ آپ اس جلسے میں آئے ہیں، جی کیا کرنے آئے ہیں؟ جلسے میں کیوں آئے ہیں؟ میں جلسے میں اپنا اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں کہ میں 70-72 سال کی عمر میں ایک نئی جذبے کے ساتھ پاکستان کی آزادی کے لیے آیا ہوں۔ 28 سال سے عمران خان کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہوں، چونکہ میرا لیول نیچے ہے اس لیے میں زمین پر بیٹھا ہوں۔ اگر میرا لیول اوپر ہوتا تو مجھے ویل چیئر پر بٹھا کر گھماتا ہوگا، لیکن افسوس کی بات ہے یہاں پر جو مستحق ہے اس کو نہیں مل رہا۔ عمران خان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ عمران خان ہیرا ہے، اس کو ضائع کرنے سے بچائے، اس قوم کو درخواست ہے کہ اس ہیرے کو بچائیں، ورنہ اب بہت نقصان میں ہوگا، پاکستان نقصان میں ہوگا۔ اس کو وہ قیدی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں 804 قیدی ہے، قیدی نہیں ہے، وہ یرغمال ہے، پاکستان کی
अवामुन्नास यरगमाल है, खवास के तो शूरी दिन से मजे हैं, सिक्योरिटी उनके पास है, माल जायदाद अदालत हर चीज उनके पास है। देखें इमरान जी। खान के लिए आप जलसे में आए हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, क्या कहना चाहेंगे? जेल में हैं। मैं उसको जेल की जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैंने पिछले जो वो 26-27 क्या था, 26 नवंबर था, हाँ उसका हालत मैं उधर देख रहा हूँ। अब ये हमारे लोग कह रहे हैं कि इस जलसे का क्या फायदा है, उससे तो यह अच्छा है कि लोग शहीद हों। लोग शहीद तो नहीं होंगे ना, वहाँ पर तो जाकर ही आपको मारा जाता है, तो मारने के लिए कौन जाता है? हाँ, ये काम हमारे लीडरशिप का है, हमारे लीडरशिप को वो चाहिए कि वो आगे हो जाए। 93 MPA हैं KPK में, हाँ 93 MPA हैं, हाँ एक MPA के पास कम से कम 5 सिक्योरिटी एहलकार हैं, हाँ उसके लिए हिफाजत है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे इस बच्चे के लिए नहीं है, मेरे इस बच्चों के लिए नहीं है। हमें उधर कॉलेज चौक से मैं पैदल आ रहा हूँ और कहते हैं कि बैग चेक कराओ, मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एक विलेज कौंसिल का सदर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। जबरदस्त। आपको क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहा है? मैं कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि अभी वो चेकिंग हो रही है और अभी 3 बजे जलसा शुरू होगा। 3 बजे फिर ये कुर्सियाँ भी 3 बजे रखे, ये कब से रखे हुए हैं? ये इस लोगों के लिए आराम के लिए रखे हुए हैं। ये आए और आराम से बैठ जाएं और इंतजार करें अपने कायदीन का, हाँ। और पूछें जी। और इमरान खान साहब की बेगम भी जेल में है। जी। इमरान खान साहब, आप समझते हैं, लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब इसराइल का एजेंट है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पाकिस्तान का एजेंट है और वो इस गरीब आवाम का एजेंट है और इस पाकिस्तान के इदारों का एजेंट है। एजेंट जो काबिज है आजकल पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को आग और खून के उसमें धकेल दिया है। जाके अमेरिका और इसराइल के सुलह करते हैं, अपने सुलह क्यों नहीं करे? हमारे साथ सुलह करे, हम मालिक हैं, हम अवाम हैं। अच्छा जी, आप कांपता जिस्म आपका, बुजुर्ग 75-76 साल की आपकी उम्र, सफेद दाढ़ी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जलसे में आए, आप क्या करेंगे इमरान खान साहब के? हम देख लेंगे, सिचुएशन को देख लेंगे कि ये लोग इमरान खान को आजाद करा सकते हैं, इन पे इतना जज्बा है कि नहीं, इसमें इतना ताकत है कि नहीं। ये देखने के लिए आए हैं आप? ये मैं देखने के लिए, चेक करने के लिए आया हूँ कि इनमें इतनी वो जुर्रत है। हाँ, मैं देखता हूँ कि आज कितने लोग आते हैं, हाँ। कितने लोग इंसाफ मांगते हैं, कितने लोग अमन मांगते हैं, हाँ। कितने लोग तरक्की मांगते हैं पाकिस्तान की। मैं इसको चेक करने के लिए आया हूँ और इंशाल्लाह मेरा खुद इरादा है उस उम्र में, इस उम्र में भी खिदमत करता हूँ, लोगों को उठाता हूँ। खुद अगर मुझे कोई उठाए मैं उसको रोकता हूँ, नहीं मैं उठ सकता हूँ। गिरे को उठाओ, आज पाकिस्तान में गिरों को सब ये जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की या KPK की, पूरे पाकिस्तान की, आप समझते हैं कि ये इमरान खान को आजाद करा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये नौजवान, हाँ। ये नौजवान मेरे आंखों के तारे हैं। हाँ। मैं ये जो बकवास करता हूँ या ये इनका हौसला है जो इन्होंने मुझे दिया है, ये इनका यकीन है कि मैं ये कर रहा हूँ। अगर ये मैं इस जवानों को जज्बा न देखता, खुदा की कसम मेरा उम्र से नहीं है। इन नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? ये जो नौजवान है, नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है कि इत्तेफाक से रहें, एकजहती में रहें, न सुने किसी का। सोशल में नहीं, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2022 में फेल हो चुका है, 2022 में फेल हो चुका है। अभी सोशल मीडिया चल रहा था, अभी वो भी लोगों ने खरीद लिया है। हाँ, वो भी खरीद, पूरा वो भी खरीद लिया है। पूरा दिन ये बकवास है कि तुम्हें ये पसंद है, कि तुम्हें ये पसंद है, तुम इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाओगे कि इसको बनाओ। ओ खुदा के बंदो, सिर्फ वाहिद एक आदमी है जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है इन नौजवानों की ताउन से, इस नौजवानों की ताकत से। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि मीडिया को खरीद लिया गया है, सोशल मीडिया को भी खरीद लिया गया। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको किसने बताया कि मीडिया को खरीद लिया मैं गया? देख रहा हूँ, मैं 75 साल का आदमी हूँ, मैं गुजर रहा हूँ, सन 70 से मैं सियासत देख रहा हूँ। ये हसन अयूब साहब आपके लिए कह रहे हैं, गरीदा फरूकी साहबा आपके लिए कह रहे हैं जी। गरीदा पारी को मेरी को उधर पाई करो, दबा करो उनको। हाँ, और हसन अयूब जो है वो भी दलाल है, वो भी दलाल है। मुनीफ फरूक भी दलाल है, वो जो सिर्फ दायरों में लगे हुए हैं। हाँ। आपने देखे होंगे हाँ। सोशल मीडिया पर, वो हीरो हैं पाकिस्तान के,
वो सही तर्जमा नहीं करते इमरान हैं। रियाज खान को जानते हैं? इमरान खान को सुना है, उसके तफसीरें सुने हैं, हाँ उसका सब बिल्कुल आदमी पॉइंट है, लेकिन अगर जब इतना मकबूल हो जाए ना हाँ। तो फिर उन्हीं की दावे करते हैं अक्सर। हाँ ये लोग जब वो सहाफी होते हैं हाँ। तो हमारे पीछे घूमते हैं। नहीं, हसन अयूब साहब अब सहाफत कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हकीकत तस्लीम करो, हाँ पाकिस्तान की हालात को देखो हाँ और उससे सीखो हाँ और उसके मुताबिक बात करो। हाँ ये तुम जो बकवास करते हैं, हमारे से ये गालियां मत खाओ, हाँ। हमारे से ये गालियां मत खाओ, हमारे से ये बदुआएं मत लो। मैं बदुआई नहीं देता हूँ किसी को। वो तो सच बताते हैं, आप लोगों को इलाके के लोगों के मसाइल बताते हैं। मसाइल तो जी पाकिस्तान तो पूरा मसाइलिस्तान है, हाँ क्योंकि पीटीआई में होना हाँ उसके लिए 5 किलो का दिल होना चाहिए, हाँ 5 किलो का दिल होना चाहिए पीटीआई में होना। हाँ। तो इस लोगों को मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, इस नौजवानों को, KPK के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान के लिए सोचो। दलाल मत बनो, हाँ दलाल मत बनो, पाकिस्तान के दलाल बन जाओ, अपने मुस्तकबल के, अपने खानदानों में अपने बच्चों के मुस्तकबल के दलाल बन जाओ। अच्छा, ये मेरे साथ नौजवान बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप तो बुजुर्ग हैं, आप आखिरी उम्र में, जिस्म कांप रहा है आपका, जिस्म साथ नहीं दे रहा आपका, इनसे जानते हैं ये क्या रखते हैं। आप सुनिएगा जरा इनकी बात। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। उधर देखिएगा। तो शुक्रिया आपका कि जो बात का मौका दिया और आपके तवज्जुह से ये बात दूर तक जाएगी। बस क्या कहें, पीटीआई जो है तो एक ऐसा नुक्ता है जो हक का नुक्ता है, और हक के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हक एक बहुत बड़ा खुद एक वज़न है जिसको उठाने के लिए उस जैसा सीना चाहिए। हाँ हाजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, और उन्होंने आपको बताया कि वो प्रेसिडेंट हैं, तो अफरीन है उनके जज्बे को। मैं तो उनके जज्बे को सलाम करूंगा कि इस बीमारी की हालत में वो लरज़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आए हैं तो वो अपनी क़यादत को बता रहे हैं कि हम थके नहीं, हम झुके नहीं, हम घबराए नहीं, हमें इस्तेमाल करो। अफसोस की बात है कि इतने लोगों को कोई इस्तेमाल करने वाला है ही नहीं। हाँ पहले लोगों की पार्टियाँ 15 लोगों की, 20 लोगों की, 100 लोगों की, वो उसको इस्तेमाल करते थे। वो रोड पे निकलते थे तो पुलिस की मजाल नहीं थी कि उनको बात कर सके, उसके वर्कर की कोई तलाशी ले सके। जैसे कि आपको हाजी साहब ने बताया कि हाजी साहब इस बीमारी की हालत में वहाँ से आ रहे हैं और मेरी KPK की पुलिस मेरे वज़ीर आला की मातहत उससे तलाशी ले रही है। चाहिए यह है कि इस बुज़ुर्ग को बिठाते किसी चेयर में, इसको जलसागाह तक पहुँचाते, ये वज़ीर आला की हिदायत होनी चाहिए थी, लेकिन किसी का किसी पे दिल ही नहीं दुखता। इमरान खान जो हमारे लिए अंदर पड़ा है, उसके ऊपर अगर किसी का दिल नहीं दुखता तो ये अवाम तो ऐसे ही भेड़ बकरी हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई बैल बकरी नहीं है, ये अवाम के हकीकी, ये पाकिस्तान के हकीकी वारिस हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, आप जीत गए हैं नौजवानों, आप जीत गए हैं इंशाल्लाह। कब उठाने का वक्त है, उठने का वक्त है। कब उठाने का वक्त है, लपक जाओ, उठाओ इसको। इसको कौन उठाएगा? मैं उठा सकता हूँ, मैं आपको बेदार कर सकता हूँ, मैं आपकी ज़मीनों को जगा सकता हूँ, मैं पूरी पाकिस्तान की ज़मीनों को जगा सकता हूँ। इस मुल्क का मतलब, इस मुल्क में ये चीज़ें होना चाहिए। दामर गिरिया कैमरे था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आप मीडिया का बहुत शुक्रिया कि ऐसे लोगों की भी आप इंटरव्यू लेते हैं सर, ये आप हमारे लिए काबिल है, खराजी ताज़ीनों के काबिल हैं। थैंक यू वेरी मच। हम सलाम करते हैं आपको। हमें पाकिस्तान में क्या चाहिए? नंबर 1 अमन, नंबर 1 अमन चाहिए, नंबर 2 इंसाफ चाहिए, नंबर 3 तरक्की चाहिए। हाँ बाकी मुझे कोई खैरात मेरात की जरूरत नहीं है। हाँ, खैरात की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई खैरात मेरात की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अपना 2 से 3 नाम लूंगा हाँ? लोगों के जो मशहूर लोग हैं। बिल्कुल। आपने उनके बारे में मुझे बताना है कि आप, अगर वो आपके सामने आ जाएं हाँ। तो आप उनके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ नवाज शरीफ साहब, अगर सामने आ जाएं तो क्या करेंगे आप? उसको ये कहेंगे कि आप जरा पीछे देखें, आपने जो किया हुआ है 1985 से आपने जो किया हुआ है, इसमें आवाम के लिए तुमने क्या किया है? उसको ये कहेंगे। आसिफ जरदारी साहब सामने आ जाएं तो उनको क्या कहेंगे?
जो 10% पूरी दुनिया में मशहूर है, तो मैं उसे क्या कह सकता हूँ? आप क्या कोई एक लाइन बोलना चाहें आसिफ जरदारी? मैं उसके लिए ये बात करता हूँ कि जरदारी साहब आप कलमा पढ़े बिस्मिल्लाह से, कलमा पढ़े बिस्मिल्लाह। कलमा पढ़े बिस्मिल्लाह शुरू करे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वजीर आजम वसल्लम। शहबाज शरीफ साहब अगर आपके सामने आ जाएं तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये कहते हैं कि तुम कपड़े उतारो, तुम कपड़े उतारो। तुमने स्वाधीन गौर में स्टेज पर बहुत कहा था कि मैं कपड़े बेचूंगा। हाँ। ये तुम्हारी कपड़े कोई संगी पारस है? इससे पाकिस्तान की भूख मर जाएगी। अगर है तो उतार दो ना। तुमने जो कहता था कि मैं जरदारी को घुसेटूंगा, हाँ, घुसेटूंगा, अब आप लोग आधा आधा करके एक दूसरे को चुमिया देते हो। हाँ। ये तुम मुसलमान हो कि तुम पाकिस्तानी हो? न तुम मुसलमान हो न पाकिस्तानी हो। अच्छा, अब आखिरी मैं नाम लूंगा इमरान खान साहब, आपके फर्ज करते हैं ये सामने खड़े हैं और आपको मौका मिलते हैं उनसे बात करने का, हाँ, क्या हाँ, बात करेंगे? हाँ, हम ये बात करेंगे कि हमें इस पाकिस्तान ने मायूस किया है। अगर मैं मायूस हुआ हूँ तो इम्कान है कि इमरान खान भी मायूसी तक पहुँच चुका है। आप माजरत करेंगे फिर इमरान खान साहब से इस कौम के हवाले से? बिल्कुल हम माजरत करेंगे कि हमारा कौम जो है ये बुज़दिल है। हाँ। बुज़दिल कभी नहीं उड़ सकता। अल्लाह ने आपको ताकत दिया हुआ है, अपने अल्लाह ने आपको ऐसा एक चीज़ दिया हुआ है कि वो लोगों को खींच लाती है अपने पास। तो आपने आवाम के लिए बहुत कुर्बानी दी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच शुक्रिया। बुजुर्गों, थैंक यू वेरी मच।